everyone. This is Ruchika, tarot card reader and spiritual healer. So today I'm doing readings for the 12 zodiacs. So this is the turn for the Scorpions. I'll be reading for Scorpions. How will be their January months in the upcoming year. So this is not a pick a card reading, guys. I'm reading zodiac wise. So I'll be using two decks here. I'll be using a Rider-Waite deck and I'll be using Angels Daily Guidance Oracle deck. Oracle cards I am using. Plus I'll be using rune stones as well to know how their upcoming month will be. So let me take 3 cards from the Rider-Waite deck. How their January month will be. How the month. Alright, so I've got my first card. 5 of Wands. Okay, Scorpions, conflicts going on. Okay, next card I got the Chariot, so traveling on the cards. And the third card is 2 of Cups. Very nice. So very nice cards. So now let's see Oracle cards क्या बोलते हैं. Okay, so one card popped out automatically. This is reward yourself. Reward yourself. So I'll be taking 2 rune stones as well. Alright, so the 2 rune stones I got are this and this. So I'll be keeping them here and I'll be taking the rune stones in the end. Okay, so let's start with the readings. So let's start with the first card, which is 5 of Wands. 5 of Wands represents this represents fire element. कहीं ना कहीं ये कार्ड कॉन्फ्लिक्ट को थोड़ा कहीं ना कहीं डिसएग्रीमेंट. कॉन्फ्लिक्ट का मतलब इज नॉट ऑलवेज विद द फाइट्स. it's not that you will fight, it will be that कभी आपकी किसी से आर्ग्यूमेंट हो सकती है फर्स्ट 10 days में. So this is the card for the first 10 days, this is for the next 10 days and these are for the last 11 days. So ये कार्ड कहीं ना कहीं आपको बता रहा है कि कुछ स्ट्रगल या कुछ प्रॉब्लम, छोटी सी प्रॉब्लम, कुछ अगर आप अवॉइड कर सकते हैं फर्स्ट 10 days में, जैसे कि आपको लगता है कि आपके किसी से इस बात पे आर्ग्यूमेंट हो जाएगी. सो अवॉइड टॉकिंग टू देम, मेंटेन अ लिटिल गैप फ्रॉम देम. जैसे कि फॉर एग्जांपल देयर माइट बी सम प्रॉपर्टी डिस्प्यूट. अगर आपको लगता है कि सम प्रॉपर्टी डिस्प्यूट इज गोइंग ऑन, सो अवॉइड टॉकिंग टू द पर्सन, टू द अपोजिट पार्टी which is involved in the dispute. और if you are doing a job, so avoid argument with your boss, क्योंकि वो आपको भारी पड़ेगा. अगर आपने argument की तो आपको भारी भी पड़ सकता है. Do not fight with anyone, do not use abusive words, do not use abusive language. I will say बहुत ज़्यादा जैसे होता है ना एकदम से फायरी एनर्जी, गुस्सा, एकदम से एग्रेशन, वो क्या होता है कि अगर कोई काम आपका ठीक होना भी हो तो वो आपका वो भी ख़राब कर देता है. तो ये कार्ड कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि प्रॉब्लम्स जो हैं वो अपने आप, कई बार प्रॉब्लम्स जो है हम उनको अवॉइड नहीं कर सकते. कई बार कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम चाहकर भी अवॉइड नहीं कर सकते. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा हमें एग्रेशन से ही काम लेना है या हमेशा हमें कुछ इरिटेट ही होना है हर चीज़ से. सो यही कार्ड बता रहा है कि अगर आप मेंटली थोड़ा सा अपने आप को इस वक्त में स्टेबल रखते हैं, सो थिंग्स विल वर्क आउट, क्योंकि आगे के जो आपके कार्ड्स हैं बहुत बहुत अच्छे हैं. सो इन 10 days में स्कॉर्पियंस, आई वुड एडवाइस यू टू नॉट jump into decisions, do not jump into arguments. Please avoid conflicts with your loved ones or with your boss or with the people you know, because this is not the right time to argue about something. ये सही टाइम नहीं है. So यही बोलूँगी कि फर्स्ट 10 days के लिए अवॉइड करनी है आपने चीज़ें. सो नाउ लेट्स कम टू द चैरियट कार्ड. अब देखो ये सिचुएशन जो है आपकी आफ्टर 10 days काफ़ी अच्छी हो जाएगी. ट्रैवलिंग इज़ ऑन द कार्ड्स. ऑफ ट्रैवलिंग भी आप ऐसे मतलब हैप्पीली करेंगे. कुछ ऐसा नहीं है कि आपको किसी उससे करनी पड़ेगी. ये हैप्पीली आप ट्रैवलिंग करेंगे. व्हाट आई फील इज़ यू शुड वर्शिप शिव जी और यू शुड चैंट ओम नमः शिवाय ऑन द डेली बेसिस.
कुछ टाइम के लिए ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए, तो दैट विल रियली बेनिफिट। यू आर अ रिस्पॉन्सिबल मैन, आपको पता है, मैन और वुमेन whosoever it is, so आपको पता है how to take responsibilities, how to handle responsibilities, so do not panic, you are capable of doing things, that's why God is giving you the responsibilities, so अपने responsibilities को आपने समझना है। और कुछ मेरे को ऐसा भी आ रहा है कि स्कॉर्पियंस में से कुछ जो हैं उनको डेफिनेटली कुछ प्रॉपर्टी बनने के चांसेस लग रहे हैं कि वेदर आइदर दे विल बाय सम हाउस और आई डोंट नो सम प्रॉपर्टी वो लेंगे, चाहे वो रेंट पे जाने का सोच रहे हैं, चाहे वो अपनी परचेज करने की सोच रहे हैं। सो प्रॉपर्टीज ऑन द कार्ड्स, प्रॉपर्टी आप लेंगे ज़रूर। सो आपने जो अपनी गॉड जो है, आपने कभी भी अपनी जो चीज़ें हैं, जैसे कि अगर सपोज कर लो आपकी कोई चीज़ें नहीं फर्स्ट 10 डेज में होती हैं, तो डू नॉट ब्लेम गॉड फॉर दैट, बिकॉज गॉड इज देयर फॉर विद यू ऑलवेज, गॉड इज देयर विद यू, एंजल्स आर विद यू। लेकिन आपने उनको ब्लेम नहीं करना है, क्योंकि ये कार्ड भी कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि ट्रस्ट इन गॉड। ऐसा हो सकता है कि आपकी पहले किसी से कुछ ऐसी बात हुई हो कि आपको लगे कि यू आर लूजिंग ट्रस्ट इन गॉड, तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ये ट्रस्ट ही आपको आगे लेके जाएगा। आपका कोई भी काम थोड़ा सा जैसे प्रॉब्लम जरूर आ जाती है कई बार आपके काम में, लेकिन आपका कोई भी काम बेसिकली रुकता नहीं है। सो मनी वाइज भी गुड न्यूज़ है, गुड न्यूज़ आपको आएगी। बिजनेस वाइज भी आप कहीं ना कहीं ट्रैवल कर सकते हैं। और जो अगर आपको कोई फाइनेंशियल क्राइसिस लग रही थी अभी तक, सो वो फाइनेंशियल क्राइसिस भी आपकी रिजॉल्व हो जाएगी। हेल्थ वाइज भी आपका गुड कार्ड है, अगर आप प्रमोशन के लिए सोच रहे हैं डेफिनेटली हो जाएगी। कुछ भी अगर आपका क्वेश्चन है तो वो इन 10 डेज में आपका होने के चांसेस हैं। जस्ट थोड़ा सा जैसे होता है ना कि बैलेंस कर लीजिए किसी चीज़ को, क्योंकि ट्रैवलिंग है कार्ड्स में, तो एट टाइम यू मे फील लिटिल टायर्ड, थोड़ा टायर्ड लग सकता है, जिसकी वजह से आपको थोड़ा गुस्सा आ सकता है। सो वो आपने कंट्रोल में करना है, इज व्हाट आई एम फीलिंग राइट नाउ। सो लेट्स मूव अहेड विद द लास्ट कार्ड, लास्ट 11 डेज, विच इज टू ऑफ कप्स। टू ऑफ कप्स जो है अपने आप में ही बताता है सेलिब्रेशन का कार्ड, आपकी फ्रेंडशिप का कार्ड, आपकी लाइफ पार्टनर के साथ आपके अच्छे रिलेशनशिप का कार्ड। ये कार्ड जो है ये स्पेशल एक बॉन्ड बताता है। अगर आप पार्टनरशिप का सोच रहे हैं तो ये कार्ड कहीं ना कहीं पार्टनरशिप का भी है, कि अगर आप पार्टनरशिप सोच रहे हैं, स्कॉर्पियंस इस वक्त किसी के साथ पार्टनरशिप में कोई काम करने की सोच रहे हैं, सो डेफिनेटली यू शुड मूव अहेड। आपको वो पार्टनरशिप में काम कर लेना चाहिए, क्योंकि वो आपको फ़ायदा ही देगा। और कहीं ना कहीं ये कार्ड जो है वो आपकी किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के साथ आपकी कंफर्ट लेवल को भी बताता है कि कुछ आप कंफर्टेबल हैं किसी के साथ बहुत ज़्यादा। सो ओवरऑल ये कार्ड बहुत ही अच्छा है। आप इमोशनली भी अपनी चीज़ें अपने पार्टनर के साथ, हो सकता है कुछ अपनी ऐसी चीज़ें हैं जो आपने काफ़ी टाइम से अपने माइंड में या अपने मन में दबा के रखी थी, शायद वो भी आप शेयर करेंगे। सो इमोशनली भी बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, फिजिकली भी बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। सो ओवरऑल स्कॉर्पियंस के लिए जो लास्ट का जो इनका मंथ्स हैं वो बहुत बहुत अच्छे रहेंगे, और इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा आइदर फ्रेंड का और लाइफ पार्टनर का और लव्ड वन का, और ये बहुत ज़्यादा उसमें फिर अच्छा करेंगे हर चीज़ में, ठीक है। सो लेट्स सी कि एंजल्स क्या ब्लेसिंग दे रही हैं। Reward yourself. You have been giving a lot of yourself lately, and it's time for you to receive. Make the time to reward yourself in a meaningful way. This balance of giving and receiving is essential to keep your energy ओके, मूड एंड मोटिवेशन। एंजल्स ये बोल रही हैं कि खुद को भी रिवॉर्ड करो, कि अपने बारे में भी कभी सोच लो। माइट बी कि जो स्कॉर्पियंस हैं, जो अभी इनका जो लास्ट ईयर गया है, या जो इनका प्रीवियस टाइम गया है, वो कुछ ऐसा गया है कि वो अपने बारे में कभी सोच ही नहीं पाए हैं। वो अपनी फैमिली के बारे में, अपने लव्ड वंस के बारे में ही सोचते रह गए हैं, और अपने बारे में वो सोच ही नहीं पाए हैं। सो अब वो टाइम है कि इनको अपने बारे में भी कुछ सोचना पड़ेगा, और रिसीव करने के लिए हमेशा रेडी रहिए। कहीं ना कहीं जो ये लोग, जो मुझे इनकी एनर्जी फील हो रही है, थोड़ा क्लोज से रहते हैं, बहुत जल्दी से किसी पर ट्रस्ट नहीं करते, और बहुत जल्दी से रिसीव करने का इनका नहीं रहता है। कि जैसे अगर एंजल्स की ब्लेसिंग भी है तो दे विल बी ऑन ऑलवेज इन कन्फ्यूजन कि वेदर टू रिसीव इट, इज इट फॉर देयर गुड, इज इट फॉर देयर बैड। सोचते बहुत ज़्यादा हैं, तो वैसा नहीं करना है। अप्रिशिएट करना है जो आपकी लाइफ में आता है, और जो चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, अप्रिसिएशन की भावना रखनी है, तो सब कुछ आपका ठीक ही चलेगा।
सो लेट्स सी कि रून स्टोन्स क्या बोल रहे हैं। रून स्टोन्स ये कौन सा है? ओके, सो ये वाला जो रून स्टोन है ये कहीं ना कहीं इंट्यूशन को बताता है कि आप लोगों की इंट्यूशन स्ट्रांग है एंड यू नीड टू ट्रस्ट योर इंट्यूशन। अगर आपको कभी भी कुछ करते वक्त ऐसा लगता है कि यस यू शुड डू दिस, तो आप उसको करिए, और अगर लगता है कि यू शुड नॉट डू दिस, नो की आवाज़ आती है, तो उसको भी सुनना है। कहीं ना कहीं आपको बोल रहा है कि अपनी अंदर की आवाज़ को आपने सुनना है। और तो इमोशनल नहीं होना है इस मंथ में, ज़्यादा इमोशनल नहीं होना है। इमोशनल होके यू मे टेक रॉन्ग डिसीजंस एज वेल, सो डू नॉट गेट इमोशनल। इमोशनल सभी हो जाते हैं लेकिन ओवर इमोशनल नहीं होना है। एंड गो विद द फ्लो, ठीक है, जैसा आ रहा है उसको थोड़ा वैसे ही लीजिए। डू नॉट ट्राई टू कि चीज़ों को ऐसा हो कि आपके अकॉर्डिंग सब चीज़ें हों, तो ऐसा तो लाइफ में नहीं होता है कि सब कुछ आपके अकॉर्डिंग हो। सो उस चीज़ को ध्यान में रखना है। सो ये जो रून स्टोन है ये कहीं ना कहीं सन की, जैसे सन कार्ड है उसी तरह से रून स्टोन है। वेरी पॉजिटिव एनर्जी, गॉड इज देयर विद यू, आपके हमेशा साथ में लाइट रहती है, हैप्पीनेस है कार्ड्स में, और पार है आपके पास। एंड दिस इज स्कॉर्पियंस, मैं आपको ये बात बोलूंगी, दिस इज द राइट टाइम टू मैनिफेस्ट थिंग्स। अगर आपको मैनिफेस्ट करना है कुछ, तो दिस इज द एग्जैक्ट राइट टाइम टू मैनिफेस्ट द थिंग्स। सो डू मैनिफेस्ट थिंग्स विच यू वांट in your life. So this is it, Scorpions. I hope this all resonated with you. Guys, please take the things with which you are resonated and leave the things which do not resonate with you. And do subscribe and share my channel so that जो मेरी आगे की notifications हैं, you may get notified for my upcoming videos. So all the best, guys. Bye bye.